हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 12। ये वर्कशीट क्लास 10th साइंस की है और आज की वर्कशीट का जो हमारा टॉपिक है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर से लिया गया है। In today's worksheet, we will discuss about the strength of acids and bases. Now let's start. It is the measure of the ability of the acids and bases to produce hydrogen and hydroxide ions respectively. अगर हमें किसी एसिड की स्ट्रेंथ पता करनी है तो वो किस चीज़ से हम पता कर सकते हैं कि जो एसिड या जो बेस है वो कितना हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। एसिड्स क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन आयन। एंड बेसिस क्या रिलीज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। कोई भी एसिड जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और कोई भी बेस जितना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा या प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नेक्स्ट है द एसिड्स विच आर 100% आयनाइज्ड in solution and give rise to more hydrogen ions are said to be strong acids, and the acids which give less hydrogen ions are said to be weak acid. जो एसिड्स पूरी तरह से completely आयनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन में, 100% आयनाइज हो जाते हैं, वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उन एसिड्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज एसिड्स विच आर पार्शली आयनाइज्ड, जो एसिड पार्शली आयनाइज्ड होते हैं सॉल्यूशन में या 100% आयनाइज्ड नहीं होते, वो लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं वीक एसिड्स। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है HCl एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम concentration both produce different amount of hydrogen ion. HCl dissociates completely so produce more hydrogen ions while acetic acid dissociate partially thus producing less hydrogen ions. It means अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड दोनों की सेम कंसनट्रेशन ले तो दोनों ही डिफरेंट अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो HCl है वो कम्प्लीटली 100% आयनाइज्ड हो जाता है सॉल्यूशन में, इसीलिए सेम कंसनट्रेशन होते हुए भी जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे HCl से वो ज़्यादा होंगे कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वीक एसिड होने के कारण पार्शियली डिसोसिएट होगा, इसीलिए वो लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा when we will take the same concentration of both HCl and CH3COOH, that is hydrochloric acid and acetic acid. Similarly happens with the base. If we take for example the same concentration of sodium hydroxide and calcium hydroxide. Sodium hydroxide ionized 100% in solution and give rise to more hydroxide ions in comparison to calcium hydroxide. It will dissociate partially and produce less amount of hydroxide ions in solution. So side is a strong base and calcium hydroxide is a weak base. Why sodium hydroxide produce more hydroxide ion? Because it ionized 100%, but calcium hydroxide can't be dissociate 100%, cannot be ionized 100%. That's why some bases are strong and some are weak. Now we will discuss about types of salt. The given table shows some example salts and the acids and the bases of which they are made of. यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको दिखाया हुआ है सॉल्ट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनके नेचर के बारे में बताया गया है और वो किस टाइप के एसिड और बेस से वो बने हुए हैं, वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ दी हुई है। फर्स्ट टाइप हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्ट विच इज़ फॉर्म बाय द reaction of strong acid and strong base. For example, sodium chloride and potassium sulfate both are salts formed by reaction of strong acid and strong base. In NaCl the acid uses hydrochloric acid and the base which is used is sodium hydroxide. Hydrochloric acid is a strong acid, sodium hydroxide is a strong base. Similarly in potassium sulfate acid used is sulfuric acid and base which is used is potassium hydroxide. Both acid and base are strong here, so the nature of salt here is neutral. The strong nature of acid is neutralized by the strong nature of base. Second type is salt of weak acid and strong base. Here we will take weak acid and base strong base.
The example of sodium carbonate and sodium acetate. The acid which will we use for the formation of sodium carbonate is carbonic acid, and the base which we will used here is sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a strong base, but carbonic acid is a weak acid. Similarly, in sodium acetate, acid which will be used is acetic acid. It is a weak acid, but the base which will be used is sodium hydroxide. It is a strong base. So the nature of overall salt will be basic, because the weak acid will not be able to neutralize the total effect of strong base. And the next type of salt is salt which is formed by the reaction of strong acid and weak base. Example is calcium chloride. Here the acid which will be used is strong acid, hydrochloric acid, but the base is calcium hydroxide. It is a weak base. When they both react, an acidic salt will be formed. Why the nature of this type of salt is acidic? Because the weak base is not able to neutralize the total acidic effect of strong acid. And the last one is salt of weak acid and weak base. The example is ammonium carbonate. The acid which will we use here, carbonic acid, and the base is ammonia. Both are weak in nature, weak acid and weak base. When they both combine, the salt form will be neutral in nature, because the weak acid and weak base neutralize the effect of each other easily. Now we will discuss about the importance of pH. We have studied about pH scale in the previous worksheet. pH scale ranges from 0 to 14. At 7 the solution is neutral, and between 7 to 14 is basic, and between 0 to 7 it is acidic. Here is an important point about pH. Our body works within the pH range of 7.0 to 7.8. हमारी जो बॉडी है इसी रेंज में अच्छे से काम करती है. अगर हमारी बॉडी का pH इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो ठीक से काम नहीं करेगी और हम बीमार हो सकते हैं, और अदर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी हो सकते हैं हमारी बॉडी में. फॉर एग्जांपल जो अंदर रिएक्शंस होती है, फूड से एनर्जी गेट करना या फिर जो विटामिन का एब्जॉर्प्शन है, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो हमारी जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है इससे वो अफेक्ट हो सकती है. नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच. First point is, if pH of rain water is less than 5.6, it is acid rain. Such rain when goes to river harms aquatic life. जिस बारिश के पानी का pH 5.6 से कम होता है वो बारिश अम्लीय वर्षा कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है. और जब ये बारिश जो ये एसिड रेन है, ये वाला जो वाटर है, जब रिवर्स में जाता है तो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान पहुँचाता है, हार्म करता है. जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी एक पर्टिकुलर, वहाँ जो एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स है वो भी एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में ही अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं. अगर उस पीएच रेंज में फ्लक्चुएशंस आए तो वो भी अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे और इवन उनकी डेथ भी हो सकती है. नेक्स्ट है, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ प्रोड्यूस इन आवर स्टमक, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. हमारा जो स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है. बट समटाइम्स ड्यू टू द इनडाइजेशन एक्सेस ऑफ एसिड इज फॉर्म. बट कई बार अपचय के कारण, इनडाइजेशन की वजह से, भोजन न पचने के कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो जाता है. कई बार हम क्या है कि ऑयली खा लेते हैं या बहुत प्रोलॉन्ग जब हम फास्टिंग करते हैं, बहुत लंबे समय तक अगर हम भूखे रहते हैं या हमने ओवर ईटिंग कर ली तो हमें बहुत अजीब सा हमारा मन हो जाता है, खट्टी सी डकारें आती है या फिर वॉमिटिंग जैसा होता है या स्टमक में पेन भी हो सकता है. तो ऐसा होता है HCl का अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण, जलन भी हो सकती है अंदर. तो इनडाइजेशन को क्योर करने के लिए हम लेते हैं एंटासिड. एंटासिड क्या होता है? जो एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं. और जो एंटासिड्स होते हैं उनमें जनरली होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है आपके जैसे जेलेसिल, डाइजिन, सोडियम कार्बोनेट जैसे आपके इनो वगैरह में होता है. तो ये चीज़ें क्या करती है? हेल्प करती है न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड.
जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम सोडियम बाइकार्बोनेट है, इन दोनों का ही नेचर कैसा है, बेसिक। ये क्या करेंगे, हमारी जो बॉडी स्टमक में जो एक्सेस ऑफ एसिड है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें इंडाइजेशन से राहत मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन pH बिकम्स लोअर देन 5.5 इन आवर माउथ टूथ डिके स्टार्ट्स। जब हमारे माउथ में जो pH है हमारे माउथ का वो 5.5 से कम हो जाता है तो दंतशय, दांतों का सड़ना, दांतों को नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू द एसिड प्रोड्यूस बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर प्रेजेंट इन फूड बाय बैक्टीरिया। ऐसा होता है एसिड प्रोडक्शन की वजह से। और ये एसिड प्रोड्यूस कौन करता है, हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो हमारे फूड में प्रेजेंट जो शुगर होती है उसको डिग्रेड कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जो माउथ का जो pH लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए टूथ डिके स्टार्ट हो सकता है। दैट्स व्हाई वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। जो टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, उसका जो नेचर होगा वो एल्कलाइन होगा। वो माउथ में जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, दस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम टूथ डिके। इस प्रकार वो हमें टूथ डिके से भी प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है बी स्टिंग लीव्स एन एसिड कोजिंग पेन एंड इरिटेशन। जब हनी बी वगैरह हमें काटती है, डंक मारती है, तो वो एक एसिड रिलीज करते हैं, उसकी वजह से हमें दर्द भी होता है और इरिटेशन भी होता है, कई बार रेडनेस भी आ जाती है। तो इसको हम क्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग माइल्ड बेसिस लाइक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, एक माइल्ड बेस है जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका यूज करके हम इसे क्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, जो बी के स्टिंग से एसिड रिलीज हुआ है हमारी बॉडी पे उस जगह पे, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड के इफेक्ट को। सिमिलरली स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड कोजिंग बर्निंग पेन। जो नेटल लीव्स है, नेटल क्या होता है, नेटल एक प्लांट है जो हिली एरियाज में मिलता है। इसकी जो लीव्स हैं इनके ऊपर हेयर्स होते हैं, और जो हेयर्स होते हैं वो स्टिंगी होते हैं। वो अगर बॉडी पे के कांटेक्ट में आ जाए तो उसकी वजह से हमें बर्निंग पेन, बहुत जलन महसूस होती है। वो भी क्यों होती है वो जलन, क्योंकि जो ये लीव्स होती है फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं, और इस फॉर्मिक एसिड के कारण ही हमें वो पेन होता है। इसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इससे अगर हमें अपने आप को क्योर करना है तो हम इसके लिए भी माइल्ड बेस जस्ट लाइक बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है pH ऑफ सोइल। सोइल pH affects the availability of nutrients to plants, so acidic soil is made alkaline by adding quicklime और कैल्शियम कार्बोनेट। जो pH लेवल होता है सोइल का वो अफेक्ट करता है कि जो प्लांट्स हैं उसके पोषक तत्वों की एब्जॉर्प्शन को। जो प्लांट्स है वो एक पर्टिकुलर pH पे ही सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हुई तो वो, या बहुत ज़्यादा बेसिक हुई तो जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अगर एसिडिक सॉइल होती है तो उसे एल्कलाइन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, क्विक लाइम का, चूने का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। नाउ here are some questions. First question is identify each salt as acidic, basic और neutral. यहाँ पे हमें 3 salts दिए हैं, हमें इनमें से बताना कि कौन सा acidic है, कौन सा basic और कौन सा neutral. First है हमारा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ये बना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो हमारा सोल्ट होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। नेक्स्ट है हमारा सोल्ट सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड से। दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है एंड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। एज अ रिजल्ट जो हमारा सोल्ट होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। सी पार्ट है अमोनियम सल्फेट। लेट्स सी इसकी फॉर्मेशन किससे होती है, अमोनियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से एंड सल्फ्यूरिक एसिड से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस बट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हेयर एसिड इज स्ट्रॉन्ग बट बेस इज वीक, सो नेचर ऑफ अमोनियम सल्फेट इज एसिडिक। इस सॉल्ट का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड इज मेड फ्रॉम डैश एसिड एंड डैश बेस। यहाँ पे हमें बताना कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है किस एसिड और बेस से इसका मिलके ये बना है। आंसर आएगा यहाँ पे, एसिड जो यूज़ है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और बेस यहाँ पे यूज़ किया गया है इसकी फॉर्मेशन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट पार्ट है व्हाई इज इट एडवाइज टू ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। हर
बार खाना खाने के बाद हमें ब्रश करने के लिए क्यों एडवाइस दी जाती है, इसका आंसर देखते हैं हम। आंसर है इसका, व्हेन यू ब्रश योर टीथ यू हेल्प रिमूव फूड एंड प्लैग अ स्टिकी वाइट फिल्म दैट फॉर्म्स ऑन योर टीथ एंड कंटेन्स बैक्टीरिया। After you eat a meal or snack that contains sugar, the bacteria in plaque produce acid that attack tooth enamel. So tooth decay can start. जब भी हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करने से क्या होगा, जो हमारा माउथ में रिमेनिंग पार्ट होता है फूड का वो रिमूव हो जाता है, या प्लैक को भी रिमूव करता है। प्लैक क्या होता है, एक स्टिकी वाइट फिल्म होते हैं, जो आपने कई बार देखा होगा, आप अगर रब करते हो अपने टीथ को अपनी फिंगर से तो कुछ वाइट वाइट मटेरियल आपको दिखाई देगा, उसी को हम प्लैक बोलते हैं। ये हमारे टीथ पे अटैच होता है और इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं। जब हम खाना खाते हैं या कुछ भी स्नैक वगैरह लेते हैं तो जो ये बैक्टीरिया है उस फूड की जो शुगर है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में, जिससे हमारे माउथ का जो पीएच लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। पीएच लेवल डिक्रीज होने की वजह से कैसा हो जाएगा, अंदर का पीएच वो एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक होने की वजह से जो हमारी टूथ एनामल है उस पर इफेक्ट पड़ता है और फिर धीरे धीरे हमें टूथ डिके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। इसके आंसर के लिए आप हेल्प ले सकते हो इस पॉइंट से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रोड्यूस्ड इन स्टमक। स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड पार्ट है, हाउ डज एक्वेटिक लाइफ गेट अफेक्टेड ड्यू टू एसिड रेन। जो एक्वेटिक लाइफ है वो एसिड रेन से कैसे इफेक्ट होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है, acid rain can make the water in lakes and stream more acidic and discharge toxic amounts of aluminum into a water system. Many aquatic animals cannot thrive in a low pH environment. जो एसिड रेन है वो क्या करते हैं, जो पानी है लेक्स का, रिवर्स का, स्ट्रीम्स का, उसको भी एसिडिक बना देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक अमाउंट में एल्यूमिनियम वगैरह इंक्रीज हो जाता है वाटर सिस्टम में। बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक जो जीव जंतु हैं वो उस लो पीएच एनवायरनमेंट में नहीं सर्वाइव कर पाते, उनकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एन एंटासिड वर्क, नेम 2 कॉमन एंटासिड्स। एंटासिड कैसे काम करते हैं और हमें 2 कॉमन एंटासिड्स के नाम भी बताने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, एंटासिड्स वर्क बाय काउंटरएक्टिंग न्यूट्रलाइजिंग द एसिड इन योर स्टमक। एंटासिड क्या होता है, जो एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं। तो जो एंटासिड है वो काउंटरएक्ट, मतलब जो एसिड होता है उसके अगेंस्ट काम करते हैं। दे डू दिस बिकॉज द केमिकल्स इन एंटासिड्स आर बेसिस। वो ऐसा कैसे कर पाते हैं, क्योंकि जो एंटासिड्स होते हैं उनमें जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक, वो बेसिस होते हैं, विच आर द अपोजिट ऑफ एसिड, जो एसिड्स के बिल्कुल अपोजिट होंगे। सो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी एसिड और बेस के बीच में वो हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो उसके एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। एंटासिड्स के एग्जाम्पल है हमारे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। दीज आर द common in various brand names and are available as tablets and liquids, and you can also take help from this point for answer of this question. And the last question is, a plant grows best when the pH of the soil is 7.2 but the pH of the soil is found to be 5.6. जो प्लांट है वो कब अच्छे से ग्रो करते हैं, जब सोयल का pH 7.2 होता है, लेकिन हमने जो सोयल है देखी तो उसका जो pH है वो कितना मिला, 5.6, यानी कि एसिडिक है सोयल का pH। Name the chemical and its nature also that should be added to the soil to adjust its pH to make it suitable for plant growth. हमें उस केमिकल का नाम बताना, उसका नेचर भी, जो हम उस सॉइल में मिक्स करेंगे उसके pH को एडजस्ट करने के लिए। 5.6 है, इट मीन्स सॉइल का जो pH है वो एसिडिक है। हमें कैसा बनाना, बेसिक, तो हम कोई बेस का यूज़ करेंगे और यहाँ पे बेस जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। इससे क्या होगा, जो pH होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, बेसिक हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।